Jai Shri Ram again. So today we are starting again from the point where माँ सीता से तो हनुमान जी मिल चुके हैं. अब वो कहाँ जा रहे हैं? राम जी के ओर. And it is such a beautiful circle, right? He came from Ramji, met Ma Sita, but the journey is not complete till he again goes and passes on the message to Ram. Many a times we wonder, and we have seen many sages, even after they have attained that higher state, they tend to come back, right? हमने देखा है. They will say, yes, we did a lot of tapasya, many years, and then finally they come back. Notionally, we can say they come down from the Himalayas back into this world. For what? To share the experience, to uplift everybody else. It is not their need, but the need of everybody else that pulls them down. And that is what is happening over here. एक तरह से देखा जाए तो हनुमान जी has accomplished what he set out for, right? प्रभु की भक्ति करी, राम जी मिले उनको, right? And सीता की खोज में निकले, उनको सीता भी माँ मिल गई. Then what? What is the need to go back? Because there are so many Vanars waiting for him to show the path कि देखो ऐसे चल के माँ सीता मिली मुझे. The message has to be given back. तो कभी कभी I feel कि this entire journey from Ram to Ma Sita was done for us. A path was chalked for us कि अगर आप ऐसे चलेंगे तो आपको प्राप्ति होगी किसकी? प्रभु की और संतोष की. Right? Many a times we get everything, but one thing that is missing in our life is santosh, contentment. And once contentment is with us, no matter how much you revel in Maya, Maya does not touch you. And a person who's contented becomes a giver. And that is what happens to all the sages. Once they have experienced the Lord, once they have taken the dip in the anand that they are, experience contentment, they become givers, and to give they come back to society, not to take from them. So this is various analogies, various explanations, various ways of understanding the Ramayana. कहते हैं ना, every time you open the Granth, a new meaning is going to come out. It is evergreen. Always a lesson is waiting. तो कभी हम सोचे कि हमने तो रामायण पढ़ ली. It is said that till we have read the Ramayana or any particular scriptures at least 22 to 23 times, we have not started to understand it. मतलब 22-23 बात पढ़ने के बाद में हम कह सकते हैं कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है. तो एक बार पढ़ने से तो क्या ही होगा. इसी के लिए जन्म जन्म लग जाते हैं. And you continue the abhyas and you go deeper and deeper and deeper. From that superficial level, you dig a little deeper till we understand the deepest and the subtlest of meaning. And there are sages who take up just one word and they are able to talk about that same one word or one chopai for months together. Because there is so much. It is like a seed. Not only every doha, every chopai, I would say every word of Ramcharitamanas is a seed. And एक बीज है वो. और जैसे ही उस बीज को हमने प्लांट करा, हमने उसको अपने हृदय में जगह दी, फिर पूरा जो पेड़ है ना ज्ञान का, वो निकल के आ सकता है. एक शब्द रामायण का अगर हमने पकड़ लिया, उसको अपने हृदय में धारण कर लिया और उसको पनपने दिया, तो we will get to know the secrets of the entire universe. But उसके लिए what is needed? श्रवण, मनन और फिर निधिध्यासन की जरूरत है.
हम श्रवण कर लेते हैं, मनन थोड़ा कर लेते हैं, निधि ध्यासन करने में हमारे से चूक हो जाती है. सो दैट इज द डेप्थ ऑफ इट. एंड हनुमान जी is showing us the link and showing us why return and showing us what this entire journey is all about. The journey forward, and we'll see now, we have started from Kishkinda Kand. Towards the end, we started talking about Sri Hanuman. And after he delivers the message of Ma Sita to Ram ji, after the 33rd Doha, इतना बड़ा उनने काम कर लिया, माँ सीता का पता लगा लिया और उसके बाद में राम जी को बता दिया. We'll see what Ram ji says about Hanuman ji. Then he becomes quiet. After the 33rd Doha, Hanuman ji does not say anything. Otherwise, he should have become he should have become that picture figure. He should have become the lead. He should have been talking throughout. But after the entire circuit of Ram to Sita to Ram is completed, he becomes quiet. चुप्पी आ जाती है. And the quieter we become, the lesser there is this need to prove or confront, the deeper our knowledge. कहते हैं ना, अध भरी घगरी छलकत जाए. जो आधी भरी हुई घगरी होती है ना, वो छलक 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 करती है. When the pot is full of water, normally the ripple is not much and the water does not scatter. But if the pot is half full, right? We can try it at home. Walk with a matka which is half full. The movement and the rush and the splattering will be more. But when we fill it to the brim, the splattering becomes very less. Quiet. इसी के लिए कहते हैं ना, many a times we might assume that is why we say that don't judge. Don't talk about anybody. Be quiet. Because we do not know हम किसकी अवज्ञा कर देंगे, क्योंकि जो भरी हुई घगरी होती है वो चुप होती है. In the midst of the crowd, there might be some sadhu, sannyasi, yogi. We are unable to identify because there's nothing being said. But identification will happen and we'll see Sri Hanuman's journey and we'll know. तो यहाँ पे क्या होता है? When we turn to after Doha number 25, when Sri Hanuman has set Lanka on fire, right? Has set Lanka on fire. But then the thought might have come to our mind कि इंद्रजीत ने तो इंद्र को जीता हुआ था, the god of rain. He could have showered down rain and totally the fire would have been wiped out. However, जब प्रभु का कार्य होना होता है ना, no hurdle can come and stop. What has to happen will happen irrespective of any kind of calamity coming our way. कहते हैं ना, प्रलय भी आ जाएगा तो अगर हरि का काम होना है, भगवान का काम होना है तो वो होगा. तो इसमें इंद्रजीत is there. What can cut fire? Rains. Indrajit has total control over Indra. Indra actually, because of the pressure, some gurus say that he sent those black dark clouds, कि अब बस इंद्रजीत ने समन करा है तो you have to go and you have to shower and wipe out the fire. So Hanumanji said, what are you doing, Indradev? Now the Lord came because you prayed कि रावण बहुत त्राही मचा रहा है, आप आ जाइए. Because of you, he took the human avatar. Because of you, the entire Leela is being played. Ma Sita is suffering so much. Over there, Ramji is waiting for the message. And even now, when he is working for you, you are working against him. You are willing to work against him in favor of Indrajit. So Indradev bolte, to मैं क्या करूं? Right? He was helpless at that time because he was controlled by Indrajit. तो मैं क्या करूं? उत्ते में क्या हुआ? हरि प्रेरित ते ही अवसर. At that time, Hari Prerit Te Aftar Chale Marut 49. For 49 Maruts, the Vayu, Devs, 49 of them. And what happens when the air blows? कई बार होता है ना कि वो बादलों को उड़ा के ले जाती है. Right? ऐसा नहीं होता कि ऐसा लगा था कि बारिश आएगी पर वो बादलों को उड़ा के ले गई. And the entire gathering of clouds, कहते हैं there is a very rare occasion when all the Maruts blow together. And इतना जोर से
they came together to accomplish the Lord's task. Ki the entire, herd of clouds, if I may say that, was scattered, and it did not rain. And then attahas kari garja kapi badi lagi akash. And then with this, when he saw this glory, kapi garja, what was his garjan? Prabhu ki kripa. Even during that time, he realized कि आज मेरे हाथ में होता हनुमान जी तो मैं शायद इन बादलों को नहीं हटा सकता था. Because his kripa was there, because this task was to happen, Marut आए and the fire was not vanquished. Even in every garjana of Hanuman, it is not a show of his strength, but the show of the glory of the Lord and his kripa and the way he works. So कभी भी हताश नहीं होना चाहिए. अगर कुछ काम नहीं हो रहा है तो वो नहीं होना है, क्योंकि प्रभु अगर चाहे कोई कार्य हो तो कोई उसको रोक नहीं सकता. It is as simple as that. Whatever is happening is good. Even when we feel that no, nothing is happening around us, we should remember that it is not meant to happen. प्रभु नहीं चाहते, तो whatever is happening is good. Whatever is not happening is good. And this is what Hanumanji teaches us, total surrender. Every accomplishment, surrender to the feet of the Lord. And what did we say? Ki adbari ghagri chalkat jaye, right? So now Hanumanji, totally quiet, totally demure, totally, कहते हैं ना, never judge a book by its cover. While looking at him, Ravan laughed, not knowing the strength of his inner self. So over here, the repentance is there, and this is a warning to all of us. हम जो कहा यह कपि नहीं कोई, वानर रूप धरे सुर कोई. Right? साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा. भूल के भी, the one thing, if we cannot take away anything else from Ramayana, ठीक है, एक चीज हम आज ले जाएं, और फिर चाहे ना भी आए क्लास में, कोई बात नहीं, सेशन में, क्लास तो नहीं कहूंगी, we are learning together. Judgment. Never judge anybody. Today we should promise ourselves that no matter what, we will not pass any judgment towards anybody because we do not know. And these two chaupais are telling us just that. लंका वासियों ने हनुमान जी को कुछ नहीं समझा, राइट? रावण उन पे हंसे, उनको लगा ये क्या ही कर लेगा, राइट? अगर राम जी के दूत ही ऐसे हैं, अदना से, छोटे से, क्या कर लेंगे? दे जज्ड. एंड देन नाउ दे से कि हमारे से क्या हो गई? अनजाने में, कहते हैं ना, नोइंग और अननोइंग, अनजाने में भी साधु की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए. हमें नहीं पता है, साधुओं के ऐसे थोड़ी होते कि दे वॉक अराउंड विथ हेलोज. ऐसा नहीं है. आई डोंट थिंक दे हैव विंग्स ऑल्सो. देयर इज वन सेज, आई डोंट नो व्हाई ही इज कमिंग टू माई माइंड राइट नाउ. आई रेड इट समवेयर that there was this sage where people used to consider him really crazy. I do not know where I read it. Why is he coming to my mind right now? But this sage used to walk around like a madman. है ना? Always mad. इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, very filthy. And it was said that he would help clean the stool of everybody. So many a times he was covered in stool. So people would, distance from him and they will say that he kaisa hai, ganda hai, this, that, everything. But that entire episode goes this way that somebody when talked to him, he realized that behind this filthy, unruly, mad self was a Jivan Mukta. Was a Jivan Mukta. Can we imagine now? हुआ भी, क्या पता? So कह रहे हैं ना, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा. हमारे को लगता है कि हमने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, हमने तो किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं कहा, पर हमें लगता है कि व्हाई इज एवरीथिंग कोलैप्सिंग अगेंस्ट अराउंड अस? व्हाई? प्रोबेबली हमारे से किसी साधु की अवज्ञा हो गई हो, जाने अनजाने में. क्योंकि जब साधु अवज्ञा होती है तो क्या होता है? लंका जैसे झरझर 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 जिसने अवज्ञा करी होती है, हु हैज इंसल्टेड अ साधु, knowing or unknowingly,
everything around him collapses. Because Prabhu can take his insult. आज हम राम जी को दो बात बोल देना, राम जी will say मेरे बच्चे हैं. It is all right. Because for us, we are his children, right? When Lakshman, initially when we saw that Ramji was leaving for Vanvas, Lakshman came and Ramji started giving him gyan, कि why he should stay in Ayodhya. तो लक्ष्मण जी ने क्या बोला कि भाई ज्ञान जब ये देने लगेंगे तो मैं नहीं जीत सकता, राइट? ज्ञानी इसी के लिए कहते हैं ना, हमें ज्ञानी भी नहीं बनना, राइट? क्योंकि ज्ञान ये देने लगेंगे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा. आई विल हैव टू से यस. अगर मैं ज्ञानी बन के प्रभु के सामने जाता हूं तो मैं हार जाऊंगा, राइट? तो फिर इन्होंने बोला मैं ज्ञानी नहीं हूं प्रभु. वट एवर यू आर टॉकिंग टू मी अबाउट दैट बिग बिग थिंग्स, चाहे आप तत्व की बात करें, इसकी बात करें, फर्ज की बात करें, ऋण की बात करें, समझ ही नहीं आ रहा. क्यों? बिकॉज आई एम नॉट इवन योर डिवोटी, आई एम नॉट अ ज्ञानी, आई एम योर चाइल्ड. मैं आपका दूध पीता बच्चा हूं. सो जब लक्ष्मण को प्रभु ज्ञान देने लगे तो ही सेड कि मैं आपका दूध पीता बच्चा हूं, राइट? मुझे कुछ समझ ही नहीं है, बस मुझे इतनी समझ है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता. अदर देन दैट मुझे नहीं पता. मुझे बस इतना पता है कि मुझे राम नाम बहुत प्यारा है, राइट? बियॉन्ड दैट मुझे ज्यादा समझ नहीं है प्रभु. तो वैसे बन के रहिए, कहते ना. और जब वैसे हम बन जाते हैं ना, दूध पीते बच्चे जो बोलते समझ हम में नहीं है ज्यादा, वो छलकना बंद हो जाते हैं. और अगर हम ज्यादा छलक रहे हैं मतलब अभी दिल्ली बहुत दूर है. एंड दिस इज नॉट टू जज एनीबडी एल्स, दिस इज टू जज आवरसेल्व्स. एवरी इवनिंग वी हैव टू सिट डाउन एंड वी शुड ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट कि आज हमने क्या किया. इट इज ओके टू मेक एन एरर. It is, yes, we say, right, to err is human. But it is foolish not to correct that error. गलती बार बार होएगी, बार बार प्रयत्न तो होना चाहिए ना उसको सुधारने का. And just imagine if we read, because today we were to go ahead from verse number 27, and I just turned the page and I realized कि अरे इसका तो ये भी मतलब हो सकता है, ये तो हमने बताया ही नहीं. तो ऐसे कोई बात नहीं, हम वापस चलेंगे और वापस आगे बढ़ेंगे. जल्दी क्या है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी हरी. एंड लेटर ऑन, आफ्टर मीटिंग माँ सीता, हनुमान जी इज मूविंग फॉरवर्ड, राइट? ना तो उनकी पूंछ में आग लगी, ना विभीषण के घर को आग लगी, और ना माँ सीता के अशोक वाटिका को आग लगी. एवरीथिंग एल्स दे से गॉट बर्न्ड. बस दीज टू प्लेसेस वर प्रोटेक्टेड बाय द अग्नि. एंड इफ वी टेक इट इन द We can take it in the literal sense. Why is it not possible? Anything is possible. But अगर हम इसमें थोड़े डेप्थ में भी जाए ना, तो we can think कि no matter how strong the blaze is, a person who is in Sharanagati of the Lord does not burn. अब आप बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है? The blaze of the situations or the circumstances do not burn the spirit and do not dim the light of joy of a devotee. That is what it is telling us. कि चाहे कैसी ही आग हमारे आसपास लगी हो, like we say ना कि the world around us might be falling apart, but the world within is intact, always joyful, always blissful, knowing that nothing happens without the will of the Lord, and whatever happens for the best. So विभीषण को आग नहीं लगी, माँ सीता को कैसे लग सकती थी? And हनुमान जी, उनको तो कुछ छू ही नहीं सकता था. कहते ना शरणागति पर हमेशा प्रभु, कहते ना शरणागति पर ने हमेशा प्रेम रहता है, पूर्ण शरणागति. So once, and then Ma Sita is saying, see, I've managed so far without being in the vicinity of the Lord. पर देखो ज़्यादा दूर हटी ना, तो अब I would not be able to hold on. And this deeper meaning, one more meaning which we can say, when she said, Deen Dayal Birad Sambhari, Harahu Nath Mam Sankat Bhari, there is no greater vipatti for a devotee
then being away from Sat ka sang, then being away from Hari Kirtan, then being away from प्रभु का कार्य. तो माँ सीता बोल रही है इस अब ये विपत्ति नहीं सही जाती मुझसे, क्या अभी तक तो हो गया पर अब 1 महीना और मैं प्रभु के सानिध्य से दूर नहीं रह सकती. Because as we said, right, when we take the wood away from the flame, no matter how ablaze that piece of wood has been, आप वो आग से निकाल के उसको साइड में रख दो, इवेंचुअली उसकी आग बुझ जाएगी. एंड दिस इज अ बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस. ऑलवेज बी इन द कंपनी ऑफ सत, बी इट इन द फॉर्म ऑफ सत्संग, कीर्तन, हरि कार्य, कुड बी गुड डीड, सेल्फलेस एक्शंस. इन सब चीजों को मत छोड़िए. इट इज वेरी इजी टू गेट लॉस्ट in the currents of Maya. And then it becomes very, very difficult to come back. So she's saying that my सबसे बड़ी मेरी विपत्ति ये है कि I am away from him. I am away from Hari Naam. I am away from Hari Chintan. चिंतन तो वो कर रही है, हरि भजन, हरि के सानिध्य में मैं नहीं हूं. I am trying to hold on. But 1 महीना और मैं दूर रही ना तो मैं और नहीं अपने आप को संभाल पाऊंगी. सो बी वेरी केयरफुल. जब माँ सीता ही बोल रही है कि इफ आई एम नॉट इन द विसिनिटी आई वुड नॉट बी एबल टू होल्ड ऑन, तो हाउ कैन वी बी अवे फ्रॉम सत इन एनी फॉर्म? नॉट ओनली सत्संग, बीइंग इन द विसिनिटी ऑफ सत, ट्रुथ, सच्चित आनंद स्वरूप के, सत कर्म के, सत वाणी के, सत व्यवहार के. कहते हैं ना, संगति हमेशा सत रखिए, चाहे वो विचार की संगति हो, व्यवहार की संगति हो, कुछ भी हो. सो शी इज सेइंग, एंड दिस इज द कैलामिटी. सी, कोई भी जो भक्त होता है ना, द ओनली टाइम ही फील्स वेरी स्कैर्ड एंड अंडर प्रेशर इज व्हेन ही फील्स कि मेरे से भक्ति ना चली जाए. एवरीथिंग एल्स इज ओके. You know, he would never turn to the Lord to complain when the world around him collapses. Because ये तो माया है, होता रहता है, प्रभु का खेल है, कभी बनाएगा कभी तोड़ेगा, इसमें मेरे को क्या लेना देना, मेरे को क्या करना. बट जब उसको लगता है कि मेरी भक्ति, द लाइट ऑफ माई भक्ति इज फ्लिकरिंग, दैट इज व्हेन ही रेजेस हिज हैंड्स एंड सेज, दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी. क्योंकि माँ सीता के लिए इसके अलावा और कोई संकट ही नहीं हो सकता कि बोल रही कि हनुमान अभी तो तुम आए थे, you had got this, you got me a spark of hope, and now you are also going. I won't be able to hold on for much. So please tell him there is a big vipatti on me. It is not Ravan, it is not Lanka, it is not these Rakshasis. It is that I am away from Sat. Deen Dayal बिरधु संभारी हरो नाथ मम संकट भारी. पर ये संसारिक रूप में भी लोग यूज करते हैं. जब संसार में आपत्ति आती है तो कहते हैं, दिस इज अ वेरी पावरफुल श्लोक to remember the Lord by saying, कहो तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी. Saying this, taking the chudamani, हनुमान जी without any delay flew off. And जहां आते समय, while he was coming for माँ सीता, we took such a long time. Within half a doha, Tulsidas ji takes Hanuman ji from Lanka directly to the shore where all the Vanars were waiting. Half a shlok. Within a shlok, he was already there. And when the Vanars saw Hanumanji, just by looking at him, without him speaking, they knew कि ये हरि का काम कर आए हैं. See, we use words, right? हम सोचते हैं कि शब्दों के अलावा किसी को समझाने का तरीका नहीं है. आई थिंक वर्ड्स आर फ्यूटाइल. देयर इज अ लैंग्वेज बियॉन्ड वर्ड्स दैट इज यूनिवर्सल. देयर इज दिस ऑरा अराउंड यू विच स्पीक्स वॉल्यूम्स. हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है और सामने वाले को पता होता है कि हमारे मन की भावना क्या है. एंड द मिनट ही सेज, ही रियश्योर्ड जनक सुता समझाए करी बहुविधि धीरज दीन. जनक सुता को समझाया, माँ आप धीरज रखिए, मैं जा रहा हूं, ऐसे गया और ऐसे राम जी को लेके वापस आऊंगा, समय नहीं लगा. चरण कमल सिर नाई कपी गवनु राम पहिकीन. एंड जैसे ही चरण कमल पे अपना सर रखा माँ के, एंड ही फ्लू, एंड देन
चलत महादुनि गरजसी भारी, एंड जोर से while leaving also वो गरजे जोर से, and it is said just by that garjana. And this, the analogy is so beautiful that the women, the Rakshasi women who were holding the child within, कहते हैं इसमें लगा ना गर्भ में जो बच्चे थे वो गिर गए, इतनी जोर से वो उनकी गर्जना थी. इफ वी गो टू द डीपर मीनिंग ऑफ दिस, हम सोचते हैं ना ये क्या कहना चाह रहे, कि जब प्रभु गरजते हैं ना, जब हनुमान जी का सानिध्य होता है ना, इवन आवर thoughts which are pregnant with vices fall off. They have not come out as actions, but the thoughts are pregnant with vices. जैसे ही हरि का नाम, हरि की गर्जना सुनते हैं हम हनुमान जी की, वो वहीं पे दम तोड़ देती है. They don't take birth. They are just there. They are about to take birth. That is the power of Hanuman and Hanuman's bhakti. कि it is finished there. उसी समय जब हनुमान जी गरजे, वहीं पे without taking birth, the thoughts, the negative thoughts will go away. And jumped, कहते ना, नादि सिंधु एही पार ही आवा, एकदम, he jumped with a leap, he came across, and he is joyous. And everybody around him, when he is looking, मतलब सारे वानर जो they, what was the instruction given by Hanuman ji when he left? He said, कंद मूल फल खाके, right? Very clear instructions were given, है ना. थोड़ा दुख होगा, कंद मूल फल खाना, हरि चिंतन करना, मैं अभी गया और अभी आया. So it was very clear कि आपको तपस्या करते रहना है while I am gone. कई बार होता है ना, how we can take this is very simple. Many a times our heart, our mind, our being does not want to practice spirituality or practice something good or be always aware or be always at the right path. Kabhi kabhi we just want to say छोड़ो ना. Why are we so hell-bent on doing everything in a particular way as per the Shastra? उस समय जब आपका मन आपके कंट्रोल में नहीं होना, तब just tell him that, listen, I know you don't want to, but this is how it is going to be. It is not always that a person is motivated. चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं हूं, आप हूं, चाहे वो ग्रेटेस्ट संत ही क्यों ना हो, they are not always motivated to keep doing what they are doing. But they write it down and they say, why did I start? And now अगर मेरा मन भी मुझे कह देना, मेरी बुद्धि भी मुझे कह देना, तो भी मैं नहीं रुकूंगा. अगर मन नहीं है कि आज एक चौपाई पढ़ूं, तो भी मैं पढ़ूंगा. So many a times he said कि आपका मन नहीं भी करे, तो don't waver from the path, continue. And we'll say ना, आज मन नहीं था तो हमने नहीं करा. ऐसे नहीं होता. And this is very true. कहते हैं ना, you will not always be motivated to do the right thing, to do the just thing, to be giving and loving. नहीं होगा. कभी कभी मन करेगा ना, क्या फर्क पड़ता है ना. For a sadhak, that is the lapse. It is not कि मेरा मन नहीं करा as a lapse. No. There will be many a times when the mind will go up and down, up and down, up and down in sadhana. But at that time we'll say it is okay. Mind is not, but you, from your body, from your actions, you continue doing what is supposed to be done. And that is what he's saying. कि जब वो गए तब बोला कंद मूल फल खाना, प्रभु की चिंता करना, don't swaver, I will come back. He's assuring that yes, right now आपकी भक्ति flicker हो रही है, मैं वापस आऊंगा. You continue with your sadhana. Don't stop. And it is a very big message. And this message has, many a times I've seen coaches or teachers giving this message. You might not always be motivated to get up at 3 in the morning and make that run. When you talk to these great people who have achieved something exceptional in life, be it in music or in business or in sports, anywhere, you will see that there is a regime, a discipline that has been followed. It is not only for a sadhak. आप संसार में भी कुछ accomplish करना चाहते हो, तो वो जो 3 बजे, या there are people who eat the same meal at the same time for 20-30 years to accomplish what they have to accomplish. ऐसा नहीं है कि their mind does not flicker कि आज I'll go and eat something else. No. Mind does. But let the mind flicker. The mouth will eat what is being put in front of it only.
And this is what Hanumanji said. And because they held on to the discipline, Hanumanji came back. And when Hanumanji came back, there was joy. See, बहुत मेहनत करते हैं, डिसिप्लिन रहता है, साधना करते हैं, तो हर्षे सब बिलो की हनुमाना. नाउ जस्ट इमेजिन, वो वहां पे तप कर रहे हैं, हनुमान जी उड़ते हुए आए हैं, आशा की देयर इज दिस स्लाइट डाउट कि शायद वो ना आए, शायद कुछ हो जाए, फिर क्या होगा. बट इन स्पाइट ऑफ दैट डाउट दे कंटिन्यूड देयर प्रैक्टिस. सी, मेनी अ टाइम्स वी कांट सी द एंड ऑफ अ टनल. If we could see the end of the tunnel, ki haan, that is at the end of the tunnel, so we'll walk towards it because that is a sure, short thing that we'll get. It is easier. But when we cannot see the end of the tunnel, it is difficult to walk on. आजकल बोलते हैं ना, that is why every journey has become result oriented. तुम ये करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा. फलश्रुति सब जगह लगाने क्यों लग गए हैं? क्योंकि नहीं तो हम चलते ही नहीं है. बट यहाँ पे देयर वाज अ डाउट कि इतनी तपस करने के बाद में भी क्या पता हनुमान वापस आए ना आए, बट वो तपस करते रहे, राइट. तो हनुमान जी केम बैक एंड देन नूतन जन्म कपिन तप जाना. Then all the kapis, all the vanars, they felt as if a new birth was given to them. And such, जब भक्ति जागती है ना मन में, तब एक नया जीवन ही मिलता है हमें. Because bhakti is very difficult. I'll pick out that paragraph from Uttarkand and we'll read it next week. A tapasvi, a jnani, a yogi से भी ऊंचा and से भी अनोखा एक भक्त होता है. That is the journey. So जब किसी के मन में भक्ति जाग जाए ना, and आप बोलोगे भक्त तो हम सब हैं, नहीं, हम अभी भगवान के बच्चे हैं. भक्ति एक अलग ही चीज होती है, right? Devotion is a league apart. So what are we then? If you're telling us that we are not devotees, what are we? We are children like Lakshman. हम भगवान के दूध पीते बच्चे हैं. Let's replace our definition of devotion with being children of the Lord. So हर्षे सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन तब जाना. फिर what happened? मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा. When we said, right, words are futile because not much has to be said. मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा किन हेसी रामचंद्र कर काजा. किन हेसी रामचंद्र कर काजा. राम का कार्य करके आए, तब मात्र देखने से, बाय जस्ट लुकिंग एट हनुमान दे न्यू दैट राम का काज हो गया है. एंड दिस इज द पहचान ऑफ अ सत्पुरुष. In that quiet, in that silence, in that, in that, even in that darkness, he will glow. कैसे? मुख में प्रसन्नता है और तन में तेज है. The aura, we can feel people's aura before the people open their mouth. And many a times we don't think beyond. Just because he was able to do Ramji's work, selfless action gives that aura. When we are working selflessly for somebody, when we are in tapas, that aura is going to be different. The minute that kind of a person walks into the room, the aura of the entire room changes. तो हम बोले कि हम तो इतने सालों से कर रहे हैं, फिर भी सामने वाला, क्योंकि हमारे अभी ऑरा में बहुत काम करना बाकी है. ये तो जन्मों जन्मों की तपस्या है. 23 बार तो हमें रामायण पढ़नी है. तो आप सोचिए ना, तो अभी हताश मत होइए. अभी हमारी ऑरा बहुत बिल्ड होगी, काफी जन्म हम काम करेंगे तब जाके होगी. हमारी तो आयु भी कम हो गई ना. पहले अब विश्वामित्र, वी लुक एट विश्वामित्र जी एंड वाल्मीकि जी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी. वाल्मीकि जी वॉज रत्नाकर. एंड देन ही सेड कि नारद मुनि आ गए, गुरु मिल गए, सही मार्गदर्शन हो गया, तो वो तपस्या में बैठ गए. क्योंकि उन्होंने बोला कि ये सब मैं मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं. तो उन्होंने बोला जाके परिवार से पूछ लो कि जो भी तुम कर रहे हो, होता है ना, सपोज वी पुश आवर हस्बैंड्स अ लॉट ना, कि बिकॉज ऑफ द फैमिली यू हैव टू वर्क. एंड देन लेटर ऑन इफ ही इज डूइंग समथिंग, सपोज, बिकॉज कहते हैं ना कि द इनकम, द वे वी अर्न द इनकम एंड द वे वी स्पेंड इट इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज अर्थ का हमने कटाक्ष नहीं करा है, but the purity of earning that income and the purity in which it is being spent is very important. So Valmiki was earning by killing.
So when he went to his mother, he went to his child, when he went to his wife, उनसे पूछा कि तुम मेरा पाप बांटोगे? तो बोला हम क्यों बांटेंगे? और माँ तो माँ होती है ना, बोला बांट भी सकूं तो भी नहीं बांट सके, जो तुमने पाप करा उसका भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा, भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा. So listening to all this, he went back and he said, अब मैं क्या करूं? तो नारद मुनि ने बोला राम राम बोलो. एंड ही सेड कि मेरे से राम राम तो बोला जाएगा नहीं, तो क्या बोल सकते हो? मरा मरा बोलो. तो उन्होंने मरा मरा बोलना शुरू कर दिया. इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग ओवर हियर. क्या राम नहीं बोला जा सकता था? पर वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. वंस वी हैव टेकन द राम नाम, यू बिकम अ दूत ऑफ द लॉर्ड. तब आपसे गलती नहीं हो सकती है ना. जब आपको लगता है कि अभी भी आपसे गलती हो सकती है तो चुप रहिए थोड़ा. नहीं तो बोलेंगे देखो ना, इतना सत्संग जाते हैं, इतना कथा करते हैं, फिर भी व्यवहार में तो कोई परिवर्तन आया नहीं. तो बुरा हमारा नहीं होता, बुरा प्रभु का हो जाता है. तो उन्होंने बोला भाई जब तक मैं वाल्मीकि नहीं बन जाता, मतलब उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता, मैं राम नाम नहीं लूंगा अपने मुंह से. तो मरा 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 करके एक ही जन्म में, द मेन थिंग इज एक ही जन्म में ही बिकेम फ्रॉम रत्नाकर टू वाल्मीकि. In the same way, the story of Vishwamitra also, he was a Kshatriya. In one birth, thousands of years of tapasya, वो क्या बन गए? विश्वामित्र बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, राइट? तो एक ही जन्म में. पर हमारी आयु तो कितनी है? If we live beyond 70 also, it is an accomplishment, right? With the medical sciences 80. So our आयु is very less. तो जन्म तो बहुत लेने पड़ेंगे ना. So if our aura is not doing what we think it should do, maybe our journey is still across jans. So हताश नहीं होना है. So Hanuman ji's aura was so strong. The minute they looked at him flying by, coming down, the glory, the shine on his face. When we give, there is a different kind of joy that fills our heart and it oozes out through our eyes and our being. देख के देखना, अलग सी ही एक तेज अपने अंदर आएगा. So they could see it and they realized कि ये राम का काज करके आ गए. जो प्रभु का कार्य करता है ना, in kind or taking his name or helping his creation, the glory is different, the glow is different. And they knew just by looking at him before he could open his mouth कि ये राम नाम, राम जी का काज करके आ गए. And they rejoiced. हनुमान जी आए तो हनुमान जी did not say much. He just said, yes, माँ सीता का पता चल गया. दृष्टा सीता, मैंने सीता को देख लिया. Beyond that, everything was not essential for him. कि I did this, this is how I burned, this is I talked to Ravan, this is how I destroyed. कुछ भी नहीं बोला. Till Jamvan asked in person कि क्या क्या हुआ. तो because he asked in person, he said, and with that entire jhund of Vanars, with that entire crowd of Vanars, thousands in numbers, he became one of them, lost in that crowd. Not leading, not boasting, चुपचाप भीड़ में वो मिल गए और आगे बढ़े. And once they reached Kishkinda, there was this Madhuban. Now Madhuban was guarded by all the Vanars and nobody could enter it. But Angad gave the permission and they went into Madhuban and they started eating the delicious fruits. And the Rakshaks, they ran. They said that Angad had given permission. We can't stop them from eating the Madhuban's fruits. They ran to Sugriv. They said they are destroying the Madhuban Vatika. And Sugriv, when he heard that they are eating the fruits from Madhuban, realized. Now, अभी ये देखिए, there was no message conveyed कि सीता दृष्टा देख लिया हमने सीता को. नहीं. He realized कि मधुबन के फूल खा रहे हैं. जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सके ही ना खाई. ये मधुबन क्या है कि सीता की सुधि नहीं होती तो मधुबन के फल क्यों नहीं खा सकते थे? आम, पपीता, केला क्यों नहीं खा सकते थे? ऐसा क्या था मधुबन में? That is in us, na? Till we find contentment, we do not know what true joy is. The sweetness of the joy cannot be tasted. हम जो देख रहे हैं आसपास, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, these are momentary happiness. This is not bliss. So he realized कि अगर content नहीं होते तो bliss का अनुभव नहीं होता. मधुबन के फल नहीं खा सकते थे. तो उनको लगा कि yes, they have found सीता, इसी के लिए वो मधुबन के फल खा सकते हैं. जब तक हमें संतोष पूर्ण तरह नहीं होगा ना, we will not experience bliss. And the minute we experience bliss, the want for anything else will go away.
हम याचक नहीं रह जाएंगे, हम दाता बन जाएंगे। अभी हम सब याचक हैं। जब माँ सीता के पास हनुमान जी पहुंचे ना, तो ही वॉज वेरी हंग्री। तो माँ सीता ने बोला, देयर वर सो मेनी ट्रीज, सो मेनी पीपल यू मेट, देयर वर सो मेनी थिंग्स। ही सेड, आई मेट याचक्स। दाता तो आप ही एक हैं, याचकों से क्या मांगू मैं? ये याचक मुझे क्या दे देंगे? याचक किसी को क्या दे सकता है? सोचिए ना, हम क्या हैं? याचक हैं या दाता? एंड जो एक संतोषी जीव होता है ना, अ पर्सन हु इज कंटेंट, एंड वी नो वेदर वी आर कंटेंट और नॉट, देयर इज समथिंग दैट कैन नॉट बी हिडन। अ पर्सन हु इज नॉट कंटेंट कैन नॉट एक्सपीरियंस ब्लिस। कहते हैं ना, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। जब कंटेंटमेंट आएगा, मेडिटेशन आप ही हो जाएगा। A person who is contented always operates in a meditative state. He is always there and, diving in the bliss of Satchit Anand Swarup that he himself is. Then the seeking of joy from everything else goes away, and that is Madhuban. He is saying, अगर सीता की सुधि नहीं मिलती तो ये मधुबन के फल तो खा ही नहीं सकते थे, तो खाने दो। एंड दैट इज व्हाट, जो ना होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सके ही ना खाई। एंड विद दिस ही रश्ड, ही वांटेड टू नो व्हाट हैपेंड, एंड राम कृपा, देन जामवंत कम्स फॉरवर्ड एंड ही सेज, राम कृपा भा काजो विशेषा, बिकॉज ऑफ हरि कृपा, राइट? They are not taking कि हनुमान जी ने कार्य कर दिया, because of हनुमान जी the work was done. No, even Jamvan and all the Vanars are saying, प्रभु की कृपा के कारण सारा कार्य हो गया. That is the level of divinity, and Hanuman ji is lost in the crowd. Huh? Hanuman ji is nowhere to be seen. And everybody, Nath Kaja कीने हनुमाना. Then finally after saying कि आपकी कृपा के कारण सारा कार्य हो गया, निमित्त कौन था? हनुमान. निमित्त है हनुमान. निमित्त तो कोई भी हो सकता है. हम में आ जाता है अभिमान, क्योंकि हम ये निमित्त भाव नहीं समझते. I did this for this person, I did this for this person. The least he could have done was call me. अगर उसका कार्य होना होता ना, कोई और निमित्त बन जाता. So these two things, राम कृपा भय काजु विशेषा. Whatever has been accomplished has been because of your kripa, O my Lord. And who was the nimitt? Nimitt was Hanuman. And if we remember this all our lives, कि हम मात्र निमित्त हैं. Even for our children, we are the nimitt. We sometimes, parents say, I have done so much for you, and this is how you repay me. आप निमित्त हैं. हो सकता है ना कि whatever you have was because that child had to benefit from you. क्या पता आप उसके भाग्य का खा रहे हैं, वो आपके कारण नहीं, आप उसके कारण है. हम भूल जाते हैं. We say we did so much for our children, and then the resentment starts. And ये बहुत होता है बड़े लोगों में. नहीं, everything was designed for him. You were just a निमित्त. बच्चों के लिए आपने कुछ नहीं किया, आप निमित्त थे. उनके लिए ये सब होना था. We earned so much. No, the earning would have come. The earning came because he was destined to go to a certain place. निमित्त. So कार्य हुआ है कृपा से, और आप निमित्त नहीं होते तो कोई और होता. अगर किसी का भला होना है तो it is not that you have got somebody a job. No, you were just the निमित्त. Somebody else could have been a निमित्त. So these two. So how are they starting such a big accomplishment? माँ सीता का पता लगा लिया, राम जी के सामने बोला, प्रभु आपकी कृपा से कार्य हो गया. ये हनुमान निमित्त था. राइट? आपने हनुमान को निमित्त बनाया. क्यों? क्योंकि मुद्रिका आपने दी थी. एंड डू यू नो हाउ पावरफुल द मुद्रिका वाज? राइट? इन द बिगिनिंग, अगेन इफ वी गो बैक, ही वाज गिवन अ मुद्रिका. उसके ऊपर राम नाम अंकित था. एंड आई वाज लिसनिंग टू वन गुरु टॉकिंग दैट दिस मुद्रिका वाज नॉट एन ऑर्डिनरी मुद्रिका. इस मुद्रिका से कहीं कहीं ब्रह्मांडों का सर्जन होता था. So many universes were created and destroyed with the help of this small mudrika. तो हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, प्रभु मुद्रिका मैली मुखमाई. एंड फिर क्या होता है? प्रभु मुद्रिका मैली मुखमाई. And then he takes, I'm forgetting, suddenly it's going out of my mind, but then he takes the leap. And there is no achraj.
This is what he says, प्रभु मुद्रिका मैली मुख माई, इसके आई एम फॉरगेटिंग, चलो उसको छोड़ते हैं, बट देन ही टेक्स द लीप एंड देन देयर इज अ लाइन विच इज अचरज नहीं, सिंधु पार करा अचरज नहीं, क्योंकि वो मुद्रिका जो उनके मुंह में थी, which he had internalized totally, had the power to do anything. That mudrika was so powerful that it could create and destroy multiple galaxies and universes. Jiska Raj, the secret and the power of this mudrika was known only by Ramji and Ma Sita. But was internalized by Hanuman ji. तो फिर तो वो कितने ही योजन का समुद्र पार कर सकते थे. तो कौन थे वो निमित्त थे, एंड उनमें कोई कर्ता भाव नहीं है. Doership makes us sink because that gives rise to ego. कर्ता भाव is the worst, right? जो हम में बहुत सहज आ जाता है. हनुमान was so light and he could fly because there was no कर्ता भाव in him, right? So again, नाथ काजु कीने हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा. And because of him, we have been able to come and face you, and he was able to find Ma Sita. Karke, the brothers were sitting on a Spatik Shila, right? And this place is still there in Chitrakoot. If you go to Chitrakoot, which we should visit, because these places give rise to the belief that yes, Ram the. Because you can trace everything back and there is proof of his existence. हम डाउट करते हैं कि प्रभु थे या नहीं थे. He walked just like us in blood and flesh on this ground of Chitrakoot. And I remember my childhood was spent in Indonesia. तो इंडोनेशिया में they give that shows है ना, रामा शिंता के जो shows होते हैं ना, dramas and everything, and it's predominantly a Muslim country, right? So आप कभी उनके नाम भी होते, देवी, सीता, गरुड़ा is the name of their plane, संपाति, मरपाति, ये airlines के नाम है, right? And you have Ganesh ji on their note also, जो note होता है ना, उसमें गणेश जी बने हुए. तो once we somebody asked कि आप तो predominantly Muslim हैं, तो फिर ये राम सीता के shows, ये वो नाम भी आप में रामा, शिंता, देवी ऐसे रख रखे हैं. So this is the beautiful answer that we have to accept. And the depth, they said, so what? Yes, currently we follow Islam, right? And we really like our religion. But he was our king. It is history. So why should we forget our king? राम हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, तो लड़ाई कहाँ हो गई, प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? हाँ, हम इस्लाम करते हैं, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, पर ये हमारे राजा थे, and he is worth glorifying. He walked our earth, he ruled us, and we sing his glories because he is worth sharing and telling. His qualities still mesmerize us. And this is how we should all be. वो हमारे इतिहास का हिस्सा है. इतिहास तो इतिहास है ना. So Chitrakoot में you can see that Shila where these 2 brothers were sitting. Even now if you touch it, it is cold. It is ice cold even during summers. वहां पे बैठे, and then प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज. And the beauty of Sri Ram, and we have experienced this beautiful magical power of Ramji and Ma Sita, is जब वो मिलते हैं ना, there were uncountable number of vanars over there. शायद जैसे तारे हम नहीं गिन सकते, we can't count the sand on the beach, we probably can't count the hair on our head, अभी तो कम हो गए हैं, पर फिर भी each and every one felt that Ramji was personally asking कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई. That personal connection and personal greeting and that personal bond was there between each vanar, each person and Ramji. ऐसा नहीं था कि उनकी प्रीति सिर्फ हनुमान से ही थी, हर किसी के लिए उनकी प्रीति बराबर थी. एंड व्हाट डिड दे से कि हम ठीक हैं, पर आपको देख के, नाउ दैट वी हैव सीन यू, वी आर ऑल राइट. टिल वी वर फार अवे फ्रॉम यू, वी वर नॉट. वी अकम्प्लिश, सब कार्य हुआ, पर अब कुशल कब हुए हैं हम, जब हमने आपको देखा है.
देखिए, सब कुछ मिल जाए हमें और प्रभु का नाम छूट जाए तो क्या हम कुशल होंगे? सब कुछ मिल जाए हमें और हमारे से हमारी मानवता छिन जाए जो आजकल हो रही है, तो क्या हम खुशल होंगे? पता है, हम लोग कहते हैं ना कि जानवर की प्रवृत्ति, नहीं, जानवर हमसे बहुत अच्छे हैं. वी हैव नो राइट टू से दिस. दे शेयर, दे केयर, दे डोंट होर्ड. लाखों लोग हमारी आंखों के सामने मर रहे होते हैं, पर हम 3 पीढ़ियों का धन अंदर रखते हैं और अपने आप को भक्त बोलते हैं. इसी के लिए मैं बोलती हूँ, भक्त मत बोलो. जिस दिन भक्त बने ना, उस दिन तिजोरियां खाली हो जानी है. अभी क्या है, हम भगवान के बच्चे हैं. हमें इतनी समझ नहीं है. भक्त की पदवी बहुत ऊंची होती है. हम नहीं कह रहे कि आप तिजोरियां खाली करिए, पर हम बोल रहे हैं आप बच्चे बन के रहिए. फिर सो ओवर हियर ही सेड, कुशल कब हुए हम? जब प्रभु आप मिल गए. व्हेन वी हैव दिस प्रभु इन आवर हार्ट्स, देन हम कुशल हैं. हैविंग एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इफ दिस राम नाम, हरि कृपा, प्रभु भक्ति अगर हमारी छिन जाए तो हमें ये नहीं चाहिए. देयर इज नो नीड ऑफ ऑल द ग्लोरीज इफ दे टेक मी अवे फ्रॉम यू. राइट? सेइंग दिस, जामवंत कनि कहा सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया. अगेन ही सेइंग, प्रभु जब आप किसी पे कृपा करते हैं, जामवंत कह सुनो रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर. दिस इज आफ्टर दोहा नंबर 29. सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सजसु त्रैलोक उजागर. बेसिकली ही सेइंग, प्रभु की कृपा भयो सबु काजू, जन्म हमार सफल भय आजू. बोले कि प्रभु, जामवंत इज एक्सप्लेनिंग, इज सेइंग कि जिस पे आपकी कृपा है प्रभु, राइट, उनका कार्य सिद्ध कैसे नहीं हो सकता. We'll just read the words and just try to understand. Says Jampan, listen, O Lord of Raghus, he on whom you bestow your blessing is ever lucky and always happy. Gods, human beings, sages are all kind to him. He alone is victorious, modest and an ocean of virtue. His fair around shines brightly through all the 3 spheres of creation. Everything has turned out well by the grace of my Lord. It is only today that our birth has been successful. Janam hamar safal bhaya ajo. A very big question should come to our mind कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम बोल सके कि हमारा यह मनुष्य जीवन सफल रहा. अगर आपसे कोई पूछे, कल राम जी सामने आ जाए, जैसे जामवंत के सामने राम आए हैं, तो हम क्या बोल पाएंगे? हाँ प्रभु, मेरा मनुष्य जीवन सफल रहा. मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है. कितनी योनियों में भटकने के बाद एक मनुष्य जीवन मिलता है. तो हम कह सकते हैं प्रभु मेरा जीवन सफल रहा प्रभु. और नहीं कह सकते तो आज ही से प्रयत्न करें कि हम कह सकें कि प्रभु मैंने मनुष्य भव व्यर्थ नहीं गवाया, मेरा जीवन सफल रहा प्रभु, जैसे जामवंत कह पा रहे. एंड व्हाट इज ही सेइंग कि अगर आपकी कृपा होती है, दृष्टि होती है, सो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर. And many a times this question comes and we are going very slow because till verse number 33 हनुमान जी बोल रहे हैं. तो अगर हनुमान जी और राम जी बोल रहे हैं तो बहुत कुछ समझने के लिए उसमें, एंड उसके बाद में हनुमान जी चुप हो जाएंगे. तो एक एक चीज हम समझ लें. कुशलता क्या होती है? When I pray a lot, I've been praying to God so much. Many people, suddenly abruptly stop turning towards the Lord. क्या मैंने इतनी सेवा की, इतनी पूजा की और तुमने मेरे से सब छीन लिया? छीन लिया मतलब you took away my wealth, you took away my friends, you took away this material, जो भी है. You say that पूजा का रिजल्ट होना चाहिए मटेरियल गेन. ऐसा हमारा ग्रंथ नहीं कहता. फिर बोलेंगे विवेकानंद जी को इतनी बड़ी बीमारी हो गई थी, बहुत संतों को बीमारी हो जाती है, तो वो तो कुशल रहे नहीं. हमारा ग्रंथ ऐसा नहीं कहता. हमारे समझने में गलती हो गई है. व्हेन ही से कि जिस पे प्रभु की कृपा है वो हमेशा
कुशल निरंतर, क्योंकि उनके अंदर कुशलता हमेशा रहेगी, संतोष रहेगा। क्या रहेगी? कृपा की तरंग जब हमारे साथ रहेगी, विल ऑलवेज बी ब्लिसफुल, विल बी ऑलवेज बी जॉयस, विल ऑलवेज बी हैप्पी इनसाइड. In spite of everything, there is a difference between the situation going bad and we being in pain. We have a choice whether we want to be in pain or not. हाँ ठीक है, शरीर को तकलीफ हो रही है, पर मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं. That is a very big difference. कि कुशलता क्या होती है? जब आप अंदर से संतुष्ट हैं. इट इज नॉट मटीरियल जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हैं कि इफ प्रभु की कृपा है देन यू से देखो आप में प्रभु रुष्ट हो गए आपसे, दैट इज वाई एवरीथिंग अराउंड यू इज फॉलिंग अपार्ट. बी वेरी केयरफुल. They are talking about your bhakti, they are talking about your sanity of mind, they are talking about your bliss which comes from within. That is kushalta, samriddhi, prosperity, not the material world around us. So he is saying कि जिस पे प्रभु आपकी कृपा है वो तो हमेशा ही कुशल रहेगा. एंड सुर नर मुनि प्रसन्न रहेंगे उनसे. बोलते ना देव आपसे रुष्ट हो गए. जिस पे प्रभु की कृपा है उससे क्या इंद्रदेव रुष्ट होंगे? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देव एंड हरि, राइट? इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव, आप में है ना कुछ तो प्लैनेटरी कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जो आपसे रुष्ट हो गए. चेक. प्रभु का नाम लेने की इच्छा है, भक्ति है, कोई रुष्ट नहीं हुआ है मुझसे. जब तक प्रभु का नाम मेरे हृदय में है कोई भी रुष्ट नहीं हुआ है. मुनि, ऑल दी प्लैनेट्स, एवरीथिंग इज कंड्यूसिव टू मी टिल आई एम वॉकिंग ऑन द पाथ, टिल आई एम लुकिंग एट ग्रेटर गुड. It is not the material loss that justify whether the planets are in our favor or not. The day you don't feel like praying, or don't, even after, the day you don't sit in prayers of your way. It does not have to be कि हमें मंदिर ही जाना है या हमें पूजा अर्चना ही करनी है या फिर हमें कीर्तन ही करना है. Everybody has a different way of connecting to the Lord. When that connection breaks, then you can say, oh my God, my planets are not with me. Right? But other than that, everything ठीक है. कहते ना, राही मनवा सुख की चिंता. सुख इन द मटीरियल सेंस क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी है. सुख है एक छाव ढलती, आती है जाती है. आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है. Today we gain, tomorrow we lose. How does it matter? That is not the definition of kushalta. That is not the definition of sukh. That is not the definition of the planets being anukul to us. So ये clearly बोल रहे हैं. And then he is saying, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सजसु त्रैलोक उजागर. जब प्रभु आप हमारे साथ में है ना, तो सब कुशल है, सब मंगल है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है. एंड प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू. जन्म मेरा सफल होगा कि जब अंत समय राम नाम मेरे मुंह पे रहेगा. पता है पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण सिर्फ 2 चीजों पे बेस्ड है. एक कि एक दिन हमें मरना है, वो एक सत्य है, उसको कोई नहीं झुटला सकता. एक सत्य है कि सबको मरना है. तो श्रीमद् भागवत बोलती है कि एक दिन आपको किस गति से मरना है. मरना एक तो हम मर गए, एक हम मर गए, हम लीन हो गए प्रभु में. तो अगर आपको उस गति से जाना है इस दुनिया से, तो आपको जीना कैसे है? गो रिवर्स. डेथ इज नॉट अ टैबू. दैट इज समथिंग दैट शुड बी स्टेयरिंग एट यू, सेइंग कि ये मैं आऊंगा. दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. एंड दैट डे मेरी गति क्या होनी चाहिए, उसके अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए. कि लोग बोले देखो इनकी क्या होती है ना, शुभ गति हुई, प्रभु में लीन हो गई है. एंड दैट इज हाउ आवर लाइफ इज अ जर्नी. कि जब वो दिन आए तब मैं प्रभु में लीन हो जाऊं. तो वी हैव टू वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम डेथ. एंड दैट इज व्हाट श्रीमद् भागवत टॉक्स अबाउट. ओनली 2 थिंग्स. वन डे वील डाई, एंड हाउ डू वी वांट टू डाई, दैट इज हाउ वी शुड लिव. 2 ही चीजें हैं श्रीमद् भागवत में, और कुछ भी नहीं है. और उसी को अलग अलग तरह से बता रहे हैं. मैं तो कहती हूँ सारे ग्रंथों में वही है कि एक दिन आपको जाना है. आपकी गति क्या होनी चाहिए जाने की, उस हिसाब से जी लीजिए आज. So that is what Jamvan is saying कि जन्म मेरा तो सफल हो गया प्रभु, आप अभी ले जाओ,
कोई आपत्ति नहीं है, हंसते हंसते जन्म का कार्य जो मनुष्य भव में करने आया था वो हो गया, आप ले जाओ मुझे। दैट इज हाउ वी शुड लिव एवरी मोमेंट। कि प्रभु बोले चले, आप बोला हाँ प्रभु चलो। एक एक पल मैंने ऐसे जिया है कि आप अभी भी ले जाओ तो कोई आपत्ति नहीं। एंड दिस इज व्हाट नाथ पवन सुत कीनी जो करनी। एंड हनुमान जो कर आया है, अगर हजारों हजारों शेषनाग भी खड़े हो जाए ना तो भी वो पूरे तरह से बता नहीं पाएंगे। तो मैं जामवंत आपको क्या बताऊं कि हनुमान क्या कराया है, हनुमान क्या कार्य कराया है। दिस इज द टीचर ग्लोरीफाइंग हिज स्टूडेंट, जिसको उसने जगाया, उठ उठ उठ, तेरा जन्म राम कार्य करने के लिए ही हुआ है, तेरे में शक्ति श्री राम की है। जब जामवंत ने ये बोला था तभी तो गरजे थे और उठे थे हनुमान अपनी नींद से। काश हमें भी कोई ऐसा गुरु मिल जाए, और जिस गुरु ने जगाया वो प्रभु के पास जाके बोल रहा है, देखो मेरे हनुमान ने क्या कार्य करा है, मेरे हनुमान ने क्या कार्य करा है। जो गुरु होता है ना वो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता, वो चाहता है कि हर शिष्य गुरु से भी बेहतर निकले। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ जामवंत। एंड हनुमान जी को सामने खड़ा कर दिया, प्रभु आपका कार्य सिद्ध इनने करा है, ये निमित्त बने हैं। एंड सेइंग दिस, सुनत कृपा निधि मन अति भयहु, जस्ट 2 minutes एक्स्ट्रा आई टेक। सुनत कृपा निधि मन अति भयहु, पुनि हनुमन हर्षि ही लयहु, कहु तात कही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। अब वो पूछने लगे कि हनुमान ये सब तुम करके आए। ही हाक्ड हनुमान जी, पवन सुत के चरित्र सुन के उनने बोला कि मैं शायद तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा, हनुमान इधर आओ। ढूंढ के हनुमान भीड़ से जामवंत ने निकाले और राम जी के सम्मुख खड़ा किया कि अब तुम सामने तो आओ हनुमान, राम बुला रहे हैं। हनुमान सामने आए, चरणों पे गिर गए, और हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि माँ सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही है, लंका में वो कैसे रह रही है। हनुमान मुझे विस्तार से बताओ, प्लीज टेल मी इन ग्रेट डिटेल अबाउट द कंडीशन ऑफ सीता, हाउ शी इज गार्डिंग हर सेल्फ, हाउ शी इज लिविंग इन सच एडवर्सिटीज वेयर पूरी लॉ विपरीत है, और भक्ति कैसे उनने संभाल के रखी है, ये मुझे समझा दो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।